कि नज़ीम अहमद साहब आपको वर्चुअली ज्वाइन करें और जो एक कॉन्सेप्ट है एसएचआई का वो आपके सामने रखें। मैं नज़ीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ऑनलाइन हमें ज्वाइन करें। शुक्रिया सर। यू आर ऑडिबल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। So we will start this session on state judge inspectors, their roles and responsibilities. So congratulations everyone for selection as state judge inspectors. You have completed a very rigorous selection process. You have attended the computer-based test as well as attended interviews, and all of you have already done Hajj or Umrah. And this year we have designed the selection process a bit more systematic to ensure that we get only the people who are best equipped to perform the duty of state judge inspectors. So we'll go to the detail about what is Hajj. You have already performed Hajj or Umrah, so you must know about the process of Hajj. Uh, Hajj pilgrim must be physically, financially, and mentally fit to perform Hajj. Hajj is one of the 5 pillars of Islam, and the government of India sends a quota of 1,75,000 pilgrims, 25 pilgrims every year. And out of these pilgrims, around 1,22,518 pilgrims will be coming from the Hajj Committee of India. Every year, we send a group of officials from the state government as well as the central government called the Kadimul Hujjaj, who assist the pilgrims on various aspects of their pilgrimage. Last year, we have sent Kadimul Hujjaj in the ratio of 1 is to 300. And now this year, which was reduced to 250, and now this year again we have increased the ratio, that is the number of Qadim Rujaj, to 1 is to 150. So you must understand that the government is giving a lot of emphasis on government is giving a lot of emphasis. Is the slide moving? Is the slide moving? Sir, PPT slides are not moving. Isaac is working on it. Just now it is started, yes. Just a moment. Yeah, we will continue. Is it visible now? Yes, sir. Okay. We'll continue the presentation. So I think Mr. Hamid Khan must have made a detailed presentation on what are the different aspects of services that the Khadimul Judge as a currently named state judge inspectors will perform. So I will not go into those details. Most important things that the state judge inspector is expected to perform, what are his duties, how he will assist the Haji, and what are the individual cases that he will face and how to handle them. That we will go in detail. Okay. So this year we are going to select state judge inspectors 1 is to 150 ratio. And what are his roles? First is assistance and guidance to Indian pilgrims throughout the pilgrimage, providing logistical and emotional support, ensuring smooth coordination with Indian authorities. So it covers everything. You are starting with the pilgrim, along with the pilgrim you will travel, and you will come back along with the pilgrim. Whatever issue the pilgrim faces, you are your friend, you are his friend end. So you have to be like his guide throughout the pilgrimage. And in this regard, we are giving assistance to the Hatsuvida app also. The Kadimul Ujaj, the state inspector will also have login. One important aspect is you have to get yourself familiarized with the Hatsuvida app. All the state inspectors, please install the app now itself and start getting yourself familiarized with all the features, because without the app, you will find it very difficult to perform your duties. Now, state inspectors have a specific duty. That is, you are not going as deputationists, you are going along with the pilgrims. So it means you will be staying with them in their rooms, and you will be staying with them in their Mina tents also. You will be going along with them on their buses. So it is a much more dedicated and a specific activity
which needs more dedication than normal. So here, what are the specific attributes we require? One is we should be dedicated and sincere. We have seen a lot of state inspectors who have performed exemplary duties last year. Many of them rescued pilgrims, lost pilgrims, identified lost baggage, and many of them faced a lot of difficulties with the pilgrims also. Like many of the pilgrims fell sick, some death cases happened. We have to do a lot of formalities. And in this regard, state inspectors form the main what do we call the first point of contact for the pilgrim for coordination with the CGI. I think you must have seen the CGI's presentation. In CGI's presentation, he has described the administrative setup, how the CGI and the whole administrative setup provides a lot of services to the pilgrims and how to access them. And it is the duty of the state inspector to ensure that there is a coordination between the pilgrim as well as the administration to uh, get the most benefit out of the administrative setup provided by the government of India. Patience and perseverance. You are handling 150 pilgrims. They come from all walks of life. They may be young, they may be old, they may be having medical problems, they may be energetic. So you have to handle each and every person by its own temperament. But the most important character that is required is patience and perseverance. Do not stop. Duty of the state inspector will start around 8 a.m. in the morning and it will last till 12 p.m., 12 a.m. in the night. So it will be around 15, 16 hours a day. You will have continuous duties. You have to get yourself fit. So this time state inspector selection, we have made a bit rigorous. We have done medical exams also. But we would request the state inspectors to do walking. At least you have to walk at least 5 to 7 kilometers a day. From today onwards, you please make it a habit to walk 5 to 7 kilometers and continuously improve the distance that you are doing and at least try at least walking once or twice 15 kilometers in a day so that you get acclimated to the continuous habit of walking. Because another thing is the state inspectors don't have vehicles. You will have to move around different buildings, different branches, and you have to coordinate with the state with the administration which is sitting in different branches and the desks. So in this regard, you have to move a lot. First thing. Second thing is you have to move to Haram, you have to move to Mina, you have to move to Medina. So there will be a lot of travel. You have to get yourself prepared for that. You are government servants. I understand that everybody has their duties, but please make yourself physically and mentally fit for the duties that you are going to perform in Saudi Arabia. Service orientation. This is another important aspect. Many of the times, I don't know, but everybody comes with that service orientation only. But we have found specific cases where they think that they have come for performing Hajj, the state Hajj inspectors. That is not the motto. The motto is to help the Hajis perform their Hajj. If you feel like I have to perform a Hajj and you leave the Haji in Mina Arafat, then the government will not take a very lenient view on this matter. We have a lot of mechanisms. The government of India has a lot of mechanisms to identify the performance of the state Hajj inspectors. We have the Hasuda, we have the different administrative officers who are working in the CGA. So if we get any reports of any deficiency in performance of the duties of state inspectors, the action will be very serious. Common sense and problem solving. Another most important aspect is the situations faced by the Haji as well as the state Hajj inspector will be evolving. Today there will be one problem, tomorrow there will be another problem. We may never know what problem we are going to face tomorrow. Suddenly there will be a problem of electricity, suddenly there will be a problem of water, suddenly there will be a problem of transport also. In such cases, it will be important for you to react immediately. You have to apply your common sense and decision making. You have to ensure that the pilgrim's comfort and safety is the most important part of your duties, and for that you have to react and decide immediately. Even even if the situation is tense, you have to be politely and patiently think about the problem and solve it. You should not get agitated, you should not get reactive, or you should not get puzzled or distressed. That is one important factor. You should not get distressed. Haji may be in distress, but the state inspector should never get distressed. He should be the what you call patient fulcrum who is ensuring that all the 150 pilgrims under his company will be safely taken back to the country after the performance of their Hajj. Good health. Another important aspect is health. This is the first time we have done a medical test for the state inspector. This is based on feedback last year. We have got many people after completion of Hajj, they have come to us, state Hajj inspectors,
they came to us saying that we want to go back to India. We are very sick. Some of them told they have what we call asthma. One of them told he has stage 4 cancer. So it is very important that the people who are helping the pilgrims should at least be fit. So if you have any medical problem, please intimate immediately to the Hajj Committee of India so that we can cancel your candidature and we can send the waitlisted person. Please don't get yourself in trouble by being ill and getting another 150 Hajis also in trouble. Another thing is strong knowledge base. Here you see eligibility criteria for state Hajj inspector, we have entrance. This time we have made it graduation. Because first is you need to have knowledge of the customs, traditions, and the administrative setup also. I think one of the candidates raised a very important question, which is that the checklist of all the activities and the different desks that are in Saudi Arabia, so that the Khadims or the state Hajj inspectors can place themselves immediately and get prepared directly when going there and performing their duties. So we will share it to you very shortly in WhatsApp, the details of the desks as well as the sections and the procedures to be operated. Different problems are the different problems in the different duties, how to report them, how to solve them, what are the mechanisms available, and if problems are not solved, how to escalate them. All this information will be communicated to you in due course. Logistics, movement, and rituals of 5 days of Hajj. Here it is important. Many of the pilgrims are very distressed. Many times what happens, the buses don't come in time, they get distressed. And in the case of Ravi and Jamarat, that is the main day of Hajj, they feel that after coming back from Muzdalifah, they have to immediately go to Jamarat and do the stoning of the devil, or the Ravi. And after that, they feel like they have to go immediately and do. Yeah, I'm trying my best, especially after the ritual and do your Ravi. Also, you can delegate the stoning of the devil to some other wakil. In such cases, if you are not feeling healthy, you can always do it. So these are things you have to sensitize the pilgrimage to move to. It is not much familiar with the Haram Sharif, where the how to enter the Kaaba, and after performing Sa'i, where will you return back, and where should you do the shaving and the hair cutting, and how to return, how to find the bus stop so that you can return back to Azizia. All this, you please do a recce. Even if you don't remember from your time in Hajj, please do a recce. Once you immediately reach Saudi Arabia, it is your duty to ensure that you are familiar about all this part. Please go to the bus stop nearest to your building which is assigned to you, so that you know the location of the bus stop and you can intimate the pilgrim about the bus stop and facilitate them to move to Haram Sharif. And performing Umrah also. In such cases, what happens is the pilgrim immediately comes, and after reaching Azizia, they want to immediately perform Umrah. So you make them in groups, take them, and another important aspect is, please note this down, you have 150 pilgrims. A single person managing a class of 150 students is not possible practically. So you please delegate the task. You please identify 5 to 10 good, sincere volunteers from among the Hajis. You make a WhatsApp group among them and communicate with them continuously. And these 10 volunteers will be assigned to 15 pilgrims each. Okay. So he will be responsible for each 15 pilgrim. And you please take continuous feedback about the health as well as well-being and the location. Many of the pilgrims don't have HOD app or mobiles, especially older people. So even they have to be taken care of and tracked off. If at all they get lost, if you are able to identify that they are lost, it is easy to find. Because many cases what happens, pilgrims get lost. They can be easily located within 1 or 2 days. After 2 days, it becomes very difficult, especially for older pilgrims. Beyond 2 days, it is very difficult to trace the lost pilgrim. This usually happens in locations like Arfat and Muzdalifah. Here what happens is people are not able to come in groups. So another important duty is to align them in groups. I think Amin Shah must have taken videos of how people are going in groups. You can see the Indonesian pilgrims, they always go in a set of 10 people and do the all the rituals of Umrah, that is doing the Sa'i as well as Tawaf and everything together. They will never leave the group and they will be completely holding hands.
This sort of setup you have to implement. The Kazimulu judge or the state inspector's duty is to bring the pilgrims that don't think you are coming on a family only. Your crowd is more important, don't think. The group is more important. So if anybody from the group is left out, you please ensure that the group is traveling together and everybody is holding hands or at least nearby each other. Then keeping track of development. Here you have to understand the administrative setup of CGA. The CGA is the apex of this organization in Saudi Arabia, and under him lot of desks are there. There is coordination desk, there is the Kadimulu judge desk, as well as branch officers which are operating in different locations for the business. तो आपको अभी समझ में आया हो कि जनरली सीजीआई का डिफरेंट डेस्क होता है, कोऑर्डिनेशन डेस्क होता है, खाते मुल्क जज डेस्क होता है, और अलग अलग डेस्क होता है, ब्रांचेस. तो वो डेस्क में आप जाके इमीडिएटली उनसे इंटरेक्शन कर लीजिए, उनसे फोन नंबर्स ले लीजिए कि उनका इंचार्जेस कौन है, उनका एक्चुअल ऐप में कैसे कांटेक्ट करना है, उसका डिटेल्स ले लीजिए. और Kazimulu judge desk and the state judge inspector desk will be your main point of report. उधर आप इमीडिएटली जाके रिपोर्ट कीजिएगा, आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगा, आपका डेली रिपोर्ट सबमिट करना होगा, उसमें डिटेल्स क्या क्या लिखना है वो सब आप उनका एएचओ और कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए और उनका नंबर जरूर ले लीजिएगा और उनका व्हाट्सएप से आप कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. और आपका अलग अलग टास्क देंगे एक स्टेट जज इंस्पेक्टर और कादिमुल जज डेस्क रेगुलरली. ऐसे आपको आदाई कूपन हाजिज का कलेक्ट करना होगा, वो भी आपके पास ही बांटेंगे. और उसके बाद मेट्रो का टिकट आप हाजियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो भी आपके पास ही आएगा. तो ये सब आप कंटिन्यूसली स्टेट इंस्पेक्टर डेस्क से आपका कम्युनिकेशन आते रहेगा. इसीलिए आप आपका मोबाइल का एक्टिवेशन करते रहना, कभी भी आप आउट ऑफ सिग्नल या साइलेंट मोड या एयरप्लेन मोड में मत रखिएगा. If state inspector is out of communication for more than 24 hours, we will immediately track him and take serious action. तो आपको पता है ड्यूटीज. अभी इसमें आपका पहले से आपको शुरुआत से क्या होता है आपको पता है. पहले आप 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर आप रिपोर्ट करना है. इसमें भी इश्यूज आता है, स्टेट इंस्पेक्टर को आपका डिपार्टमेंट से रिलीव नहीं हो पा रहा है, ऐसे बहुत इश्यूज आता है. तो लास्ट फ्लाइट में 10 कादिमुल जज या स्टेट इंस्पेक्टर जाते हैं, वो इश्यूज होता है. इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप अभी सेलेक्ट हो गए, आपको पता है कि कब जाना है. अप्रैल 29 से आपका पहले फ्लाइट शुरू होता है और मई 28 तक आपका फ्लाइट चलता रहेगा. तो आपका एम्बार्केशन पॉइंट आपको पता है, तो उस किस लैब पे जा रहे हैं आपको पता है. इसके हिसाब से आप ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दीजिएगा आपका डिपार्टमेंट से रिलीव करने के लिए. आप लास्ट बार में रिलीव होके आएंगे तो हम भेजेंगे नहीं, बिकॉज आपका वेट लिस्ट में किसी को रिलीव करता है तो उसको भेज देंगे, क्योंकि आप हाजिर के साथ जाना है, हाजिर के पहले जाना है. आप लास्ट फ्लाइट में जाएंगे ऐसे कभी भी प्लान मत कीजिएगा. तो आपका रिलीविंग का फॉर्मेलिटीज अभी ही शुरू कर लीजिए. और 48 आवर्स बिफोर आप हाजिर का हज हाउस में आप रिपोर्ट कर लीजिए और उधर हाजी के साथ इंटरेक्ट कर लीजिए, उनका नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ ले लीजिए और इनफॉर्मल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए. और मैं बोला था आपको एक वॉलंटियर्स रखना है, 10 वॉलंटियर्स आप आइडेंटिफाई करना है. वो हाजियों से ही अच्छा आई मीन यंगस्टर्स होना चाहिए, उसमें पढ़े लिखे होना चाहिए, थोड़ा सा लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए उन लोगों को. तो उनसे उनके साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको 15-15 हाजियों को उनका कवर के साथ अलर्ट करके उनको जिम्मेदारी दे दीजिएगा कि उनको आपसे कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए और हाजी का उनका ग्रुप में हाजी का कुछ तकलीफ है तो आपके पास इंफॉर्मेशन भेजना चाहिए. तो ये हो जाएगा. फिर आपका डायरेक्टली आप एयरपोर्ट में आने समय इमिग्रेशन प्रोसेस होता है हाजियों के लिए. तो आपके पास एयरपोर्ट में रहने समय ही आप चेक कर लीजिए कि हाजी के पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं. पहले उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीसा होना चाहिए, उनके पास ब्रेसलेट होना चाहिए. अलग अलग ब्रेसलेट होता है, एक ई ब्रेसलेट होता है, एक स्टील ब्रेसलेट होता है और उसके बाद हाजी का आईडी कार्ड होता है और उनका हेल्थ कार्ड होता है. ये सब डॉक्यूमेंट्स उनके हाजी सब हाजी के पास है क्या नहीं,
ये सब आप कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज बहुत हाजी क्या होता है बाद में आने के बाद मिसिंग हो जाते हैं, तो उनका बोर्डिंग प्रोसेस और इमिग्रेशन प्रोसेस हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आप पहले ही उनको सेंसिटाइज कीजिए हज हाउसेस में कि ये सब डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं। और इसमें एक और अलग चीज है कि स्टेट हज कमिटीज को भी हम इस बार इंटीमेट किया है कि सब लगेजेस में एक अच्छा सा लगेज टैग इस बार दे रहे हैं, उसमें RFID ट्रैकिंग भी होगा और एयरलाइंस बैग टैग जैसे होगा उसको। उनका दो बैगेज होता है, एक हैंड बैगेज होते हैं, दो चेक इन बैगेज होते हैं, उसमें 40 kg का आप चेक इन बैगेज अलाउ करते हैं। तो दोनों चेक इन बैगेज और हैंड बैगेज में उनको टैग लगाना चाहिए, इसको इंश्योर कर लीजिए आप डिपार्चर के पहले आपका 150 हाजी को कंफर्म कर लीजिए, ये जिम्मेदारी बिफोर डिपार्चर होना चाहिए। उसके बाद आप एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में क्या क्या हाजी के लिए इंतजाम है उसके बारे में आप पहले ही आप स्टेट हज कमेटी से बात करके उनको कंफर्मेशन ले लीजिए कि एयरपोर्ट में किसके साथ आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनको उधर यूजुअली सभी एयरपोर्ट्स में उनका वजूखाना होता है और नमाज पढ़ने के लिए भी जगह होता है, एक मस्जिद के टाइप हम बना के रखते हैं ताकि हाजी एहराम के हाल पे जाते हैं तो कंटिन्यूसली नमाज छूट ना जाए। तो पहले वजूखाना और नमाज की जगह कहाँ है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और वजू को क्लिक कर लीजिए। और उसका चेक इन और इसमें कुछ मसला है, बैगेज टैग नहीं है, लगेज का आर्टिकल गलत, तो सब आप कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा बिटवीन एयरलाइंस एज पर स्टेट हज कमिटीज। आपका फ्लाइट में एटलीस्ट 150 आगे जा रहा है तो 300 फ्लाइट में 2 आदमी वीजा या स्टेट हज कराएंगे, तो ये इश्यू कर लीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स फ्लाइट में शुरू हो रहा है आप सॉल्व करना पड़ेगा। और एयरपोर्ट में भी कुछ इश्यूज आते हैं हाजी के लिए, एग्जाम्पल पहले ही बोल दीजिएगा कि हाजी एयरपोर्ट में भी बाथरूम एंड वॉशरूम यूज कर लें, क्योंकि फ्लाइट्स में एक या दो बाथरूम ही होता है, वॉशरूम होता है, उसमें बहुत हाजी जाते हैं, क्यों लगा जाता है, तो इसमें बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए तो पहले ही हाजी को बोल दीजिएगा कि आपका 5-6 घंटे का सफर होगा, तो इसलिए आप इधर ही आप वजू कर लीजिए और वॉशरूम यूज कर लीजिए ताकि आपको उधर जाके आपका तकलीफ ना हो। और एहराम का हालत का चीज भी उनको बता दीजिए कि कंट्रोल योर सेंसेस एंड डिसिप्लिन रखिए, बैठने में कैसे बैठना है और कैसे इंटरेक्शन करना है विद द एयर होस्टेसेस एंड द क्रू, कैबिन क्रू। उसको आप एक बार सभी हाजियों को बुला के उनको ब्रीफिंग कर लीजिए। आपका 3-4 घंटे लगेगा रहेगा एयरपोर्ट के अंदर, उस समय हाजी के साथ अच्छे से बात करके उनका नंबर लेके ये सब चीज को ब्रीफ कर लीजिए। उसके बाद आपका फ्लाइट होने के बाद आपका लैंडिंग होगा, लैंडिंग होने के बाद उसको सऊदी इमिग्रेशन होता है, उस समय एक तो इश्यूज होता है, कभी कभी पासपोर्ट मिसिंग हो जाते हैं, कुछ हाजी इमिग्रेशन में लेके जाते हैं, बाहर सऊदी पे आने समय उनको पासपोर्ट मिस हो जाता है। वैसे होने सिचुएशन में टेंशन अलार्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारा सीजीए के टीम का सिचुएशन कंट्रोल के लिए दे हैव मैकेनिज्म्स, वो इजी एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू कराएंगे, उसके हिसाब से उनको एप्लीकेशन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो इसको आप रिपोर्ट करना है तो इमीडिएटली इसीलिए आप रोमिंग रख लीजिए, सो दैट आप इमीडिएटली लैंडिंग होने के बाद भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप इमीडिएटली आपका स्टेट हज कमिटीज को कम्युनिकेट कीजिए या आप आपका सीजीए का सुविधा ऐप से उनको इंफॉर्मेशन कर लीजिए, तो आपको उसका व्हाट डू वी कॉल बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। और इधर भी इमिग्रेशन 3-4 घंटे लगेगा, बैगेज ट्रांसपोर्ट भी, बैगेज में भी अभी आपको बोला है कि बैगेज का क्या क्या परमिटेड है क्या क्या नॉट परमिटेड है, उसके बारे में आप अभी पढ़ लीजिए और हाजिज को सजेस्ट कर लीजिए। और एक और चीज है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी से शुरू होगा और बहुत कुछ जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा, तो उस समय एक बार आप डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कर लीजिए ताकि हाजिज का क्या क्या इश्यूज है और उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उसको अंडरस्टैंड करके आप प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपका और हाजी का कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपका इंटरेक्शन से आप उनको भी मदद मिलेगा, आपका भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और डेली विजिट्स ये है कि आप लैंडिंग हो गया, लैंडिंग होने के बाद बहुत इश्यूज होता है कि हाजी को इकट्ठा लेना पड़ेगा ताकि उनको प्रोसेस में मूव करना पड़ेगा, तो उस समय क्या होता है कि हाजी को कम्युनिकेशन के लिए उधर लैंडिंग के लिए हज टर्मिनल और टर्मिनल 1 होता है, तो उसमें हज टर्मिनल में लैंड किया तो बस में जाते हैं और टर्मिनल 1 में लैंड किए तो वो लोग मेट्रो ट्रेन पे जाते हैं, तो उसमें हाजी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, एक चीज ये है। और एक और चीज है कि हाजी को आप एयरपोर्ट में आपको 3-4 घंटे मिलेगा, उस समय हैंड बैगेज में क्या क्या रखना है वो सब बोल दीजिए, हाजी से टेंशन हो जाता है
कभी कभी उनको मटेरियल मिस होने से नहीं, तो उसके लिए बोल दीजिए कि वॉट एवर ही हैज टू टेक फॉर 1 or 2 days, अभी 1-2 दिन लगेज मिलेगा, बाद में मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हाजी को होता है उसको हैंड बैगेज में रखने के लिए बोल दीजिए, ये एयरपोर्ट में या हज हाउस में बोल दीजिए, ताकि उनको इमरजेंसी सप्लाई उनका हाथ में रहेगा। और आपको भी हाथ में इंपॉर्टेंट आइटम्स आप हाथ में रख लीजिए, आपका स्टेट हज कमेटी से भी देके थोड़ा सा मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन दे लीजिए, पैरासिटामॉल, क्रोसिन, ऐसे क्या क्या कॉमन मेडिसिन है वो सब एक स्ट्रिप या 2 स्ट्रिप करके रख लीजिए, ताकि आप हाजी का मदद करने में आपको आसान होगा। अब प्लानिंग हो गया, आपका लगेज हो गया। बसेस में आपका 150 हाजी है तो 150 सब हाजी बस का बोर्डिंग करने के बाद ही आप जाना है। ये इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कि आप एक भी हाजी को मिसिंग नहीं करना है, कुछ भी हाजी नहीं बोर्डिंग किया तो उसके बाद आप इसे इमीडिएटली उसको एएचओ या उसके पास उधर एचए असिस्टेंट होते हैं, उन दोनों को रिपोर्ट कर लीजिए, तो टेक नेसेसरी एक्शन टू आइडेंटिफाई द हाजी। इधर बसेस में भी आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, एक कवर में 5 लोग होते हैं, तो बसेस में भी कवर स्प्लिट हो जाता है, तो उसमें हाजिस का दिक्कत आती है। तो ओल्ड पर्सन के लिए व्हील चेयर्स ये सब का इश्यूज होता है, तो उस समय भी उसका स्पेशल असिस्टेंस है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द सीजीएस टीम, ये भी आपका जिम्मेदारी में आ जाता है। और अभी आप बसेस में जा रहे हैं, आपका जिस जगह का उनका अकोमोडेशन होगा उधर आप लैंड कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका मेजर जॉब शुरू हो जाता है। पहले आप गाड़ी जज को रिपोर्ट करके आपको रिपोर्ट देना है, उसके बाद हाजिज को आप खिदमत करना है। तो हाजिज को खिदमत करने में क्या क्या इश्यूज आता है, पहले हाजिज को चाहिए होता लगेज, उनको लगेज नहीं मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, तो लगेज दस नॉट कम इमीडिएटली। सेकेंड इज उनको उम्रा लेके जाना है, तो इसमें आप ग्रुप बना लीजिए, आपका वॉलंटियर्स को यूज कीजिए। हम बोले थे 10-15 वॉलंटियर्स ले लीजिए, उनको 10 या 15 आज इसको अलॉट कीजिए। तो वॉलंटियर्स के साथ ग्रुप बना के ग्रुप में टाइमिंग देके ये टाइम में ये ग्रुप जाएगा, ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में रहिए, ताकि ये ग्रुप जाएगा और उनका उम्रा होने के बाद आपका फुल कम्युनिकेशन आ जाएगा कि ये ग्रुप उम्रा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद आपका लगेज का, मिसिंग लगेज का इश्यूज आना शुरू कर देते हैं। अभी लगेज आएगा, लगेज आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कभी कभी लगेज लेट आता है, तो इसके लिए आप क्या करना है, ब्रांचेस या कादिमुल इजाज में रिपोर्ट कीजिए, तो ब्रांच में आपका कोऑर्डिनेशन करेंगे कि कहाँ है लगेज, कब तक आएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हाजिज को पास कर दीजिए। और हाजिज को एक और चीज है कि हाजी का किचन में गैस है क्या नहीं, किचन में पानी है क्या नहीं, टॉयलेट में पानी है क्या नहीं, ये सब आप इंश्योर कर लीजिए। इसमें कुछ कमियां है तो इमीडिएटली आप क्या कीजिए, हारिस के पास जाइए, हारिस के पास जाके हारिस के पास जाके हारिस को रिपोर्ट कर लीजिए। हारिस के पास जाइए, तो हारिस आपको ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा, तो आप वो कर सकते हैं। और हारिस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इमीडिएटली आप ब्रांच, आपका बिल्डिंग का एक ब्रांच अलर्ट होगा, वो सुविधा आपको मिल जाएगा कि किस ब्रांच पे ये बिल्डिंग एलोकेटेड है, तो उस ब्रांच का फोन नंबर भी मिलेगा, उसको कम्युनिकेट करके आप इमीडिएटली आपका क्या इश्यू है बिल्डिंग में, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एसी और जमजम, ये सब इश्यूज कॉमनली होता है, तो इसको आप रिपोर्ट कर लीजिए, तो वो लोग आपको सॉल्यूशन निकल के देंगे। एक नेक्स्ट इज इमरजेंसी सपोर्ट। ये होता है कि हाजी को अभी उम्र करके आ गए, तो वो सब दे विल कम इनटू द रूटीन, तो उसको बस स्टॉप का आप लोकेशन इमीडिएटली उनको बोलना चाहिए, ताकि बस पकड़ के वो लोग उम्र करने के लिए जाएंगे। तो वो होने के बाद आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं हाजिस का, कुछ हाजिस कभी कभी बीमार पड़ जाता है, तो उनके लिए मदद करना पड़ता है, तो उस समय आपको immediately there are mobile medical teams. First is there are mobile medical teams, then there is dispensaries, then there is hospitals, then there is Saudi government hospitals. तो ये अलग अलग सेटअप आपको ऑलरेडी डॉक्टर नवीन वर्मा और डॉक्टर अबू मसूद मस्टर एक्सप्लेन very clearly about the medical setup available in Saudi Arabia, तो इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जाएंगे, बस एक चीज देख लीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप मोबाइल मेडिकल टीम्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके लिए हर सुविधा में भी आप प्लेस कर सकते हैं या डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं टू द ब्रांचेस टू अरेंज फॉर द एम्बुलेंसेस। आप वेट मत कीजिए।
is लॉस्ट बैगेज। तो लॉस्ट बैगेज में मिसप्लेस बैगेज सेल है, तो उसमें हाजी का कुछ आइटम मिस हो गया और उनका लगेज नहीं पहुंच पाया, तो मिसप्लेस बैगेज सेल से आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, तो आपका हाजी का आइटम्स को वो ढूंढ के आपको दे देंगे। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी सर, सॉरी डिस्टर्बिंग यू। हेलो जी। यस यस जी सर, स्लाइड मूव नहीं कर रही है और आपकी आवाज़ बहुत लो है सर। बहुत लो है क्या? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लो है, तो ऑडियंस थोड़ा उसको सुन नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। No, it's good, but I'm not able to control the situation here. Just a minute. There are no audio controls here. हेलो हेलो हेलो। यस सर, अभी आपकी आवाज़ आई। आई है क्या? ठीक है क्या आवाज? यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके, विल कंटिन्यू यस सर, यू कैन। प्लीज। सो हियर वी हैव मेडिकल प्रोसीजर्स आपको बोले। तो हाजीज का कुछ मेडिकल इश्यूज है, तो आप इमरजेंसी कंडीशंस में आप डोंट वेट, यू इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंसेस। एम्बुलेंसेस के लिए आपके पास है सर्च ऐप में आप एसओआई प्लेस कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है कि आप उनको लोकल ब्रांचेस को कॉल कर लीजिए, तो इमीडिएटली वो ब्रांच से आपको एम्बुलेंसेस भेज देंगे। और नेक्स्ट थिंग, उदाहरण वास्ते आपको कुछ डेथ केस हो गया, तो उसके लिए भी आपका प्रोसीजर्स है, वो भी आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया होगा आई थिंक। स्टिल आई विल ब्रीफ द प्रोसीजर। तो पहले डेथ केस में आप इमीडिएटली हमारा कोऑर्डिनेशन डेस्क को रिपोर्ट कर लीजिए और मॉर्निंग को इन्फॉर्म कर लीजिए। मॉर्निंग होता है अभी, इसको बोलते हैं सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर को आप रिपोर्ट करने में मकतब बोलते हैं, तो मकतब का नंबर होता है, उसका नंबर्स भी मिल जाते हैं। लाइन वो नहीं होगा क्या साइड से? कहां से? अभी मूव हो रहा है ना स्लाइड, लूप पर एसएचएस। अभी किस स्लाइड पे है? लूप। सभी एसएचआई हजरात से मेरी गुजारिश है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। मोमा के डायरेक्टर हज इसमें आपसे मुखातिब हैं, इसको आप बहुत एहतियात से सुने। ये आपके पूरे सफ़र पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। बराए करम इसे बड़े ध्यान से सुने। वही मैंने कोशिश की है, मैंने रिक्वेस्ट की है सर से, और इंशाल्लाह अभी वो उस पर कुछ चल भी रहा है इंशाल्लाह। लेकिन आप तक आवाज़ ज़रूर पहुंच रही है, बजाय इसके कि आप आपस में बात करें। आप डायरेक्टर हज को सुने। I am just in front of the mic. थैंक यू सर। Yeah. Am I audible now? यस सर, फुल्ली ऑडिबल। So I will get very close to the mic and talk. So if there is any issue in the audio, very sorry, but please listen to this. Regarding burial procedures, अभी if the Haji is deceased, उसके लिए आप क्या करना है कि एनओसी लेना है उनका रिलेटिव्स के साथ, और उनके रिलेटिव से एनओसी लेने के बाद उधर मौलिम का सर्विस सेंटर होता है,
तो और उनसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं और कोऑर्डिनेशन डेस्क से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन डेस्क से कोऑर्डिनेट करने के बाद आपका मोलिम या सर्विस सेंटर आके ये हाजी का कफन दफन का प्रोसीजर कर देंगे। उनका लगेज या उनका पर्सनल पोसेशंस होगा, उसको आप ये काम कर सकते हैं, पहले उनको रिलेटिव्स को इश्यू करना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिव्स नहीं है, वो आज ही अकेले आए हैं, तो उनके लिए इमीडिएटली उसको IHPO मक्का होता है, इंडियन हज पिलग्रिम्स ऑफिस, उधर सबमिट करके फिर रिसिप्ट ले लीजिए। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद उनका हाजी का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आप बहुत हाजी का फैमिली से भी आपको कोऑर्डिनेशन के लिए मैसेजेस आते रहेगा कि उनका हाजी का रिलेटिव से कि क्या हुआ, तो यही प्रोसेस होता है। तो सब हाजी को आप इंटीमेशन कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज आपका जुम्मे के दिन में आपका ज्यादा काम होता है, तो वो भी इसके बारे में बहुत लोग बोले होंगे कि जुम्मा में जल्दी का पहले ही हाजी शुरू हो जाएगा जाने के लिए। तो उस समय आप कोऑर्डिनेशन करते रहिए कि बसेस कहाँ है, कब तक हाजी पहुंचे, और वापस आने समय भी हाजी गुम होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। तो इसमें आपका वॉलंटियर्स, आपका 10 वॉलंटियर्स मैं बोला था, उसका यूज करके उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो उसका जिम्मेदारी कर लीजिए। और अदर चीज है कि जमजम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जमजम में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इश्यूज रहता है, उसके बारे में भी आप देख लीजिए और उसको हारिस और ब्रांच और डेस्क से भी कांटेक्ट में रहिएगा। और अभी ये अजीजिया में आपको पता है कि बिल्डिंग्स होता है, बिल्डिंग्स में किचन्स होता है, तो किचन्स में कुकिंग का फैसिलिटीज होता है, तो हाजी किचन यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिलेंडर का इश्यूज आ सकता है, कभी कभी सिलेंडर्स कम, आई मीन फुल्ली फिनिश हो जाता है, या सिलेंडर्स का प्रॉब्लम होने समय इमीडिएटली आप हारिस को इंटीमेट कर दीजिए। तो हारिस का नंबर ले लीजिए। इसमें एक और चीज होता है कि आपको किसी को भी अरबिक पता नहीं होगा, तो इसके लिए हम बोले कि थोड़ा सा कॉमन अरबिक वर्ड्स और कॉमन अरबिक सेंटेंसेस आप पढ़ लीजिए। अभी आपके पास 1 महीना है, तो एटलीस्ट 100 to 200 सेंटेंसेस कॉमन अरबिक यूसेज में होने वाला चीज आप अभी पढ़ के जाइए, तो आपको बहुत आसान आएगा उधर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन विद द सर्विस सेंटर एज वेल एज द हार्वेस्ट। नेक्स्ट, आपका डेली ड्यूटीज में क्या होता है कि आप हाजीज के पास जाना है और हाजी को रिपोर्ट लेना है कि क्या कर रहे हैं, उनका तबीयत कैसे है, सभी हाजी उधर है क्या, कोई मिसिंग हो गया क्या नहीं है, वो सब डिटेल्स आप लेना पड़ेगा। और उसके बाद हाजी से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि क्या क्या इश्यूज है, कि पानी का इशू है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, AC का इशू है, वो सब आप कोऑर्डिनेट करेंगे। और उसको डेली रिपोर्ट फॉर्मेट सुविधा अपना होता है, तो उसमें आप डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज होता है कि हाजी कुछ एडमिट हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बारे में भी आप रेगुलरली जाके उनका तबीयत के बारे में भी अपडेट लेके उसको भी आप कोऑर्डिनेशन डेस्क और ब्रांच में इंटीमेशन कर लीजिए। नेक्स्ट इज आपको क्या क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज इसका मदद करना है, खिदमत करना है, ये आपका जिम्मेदारी होता है, बट कुछ चीज नहीं करना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग है कि किसी मीडिया या प्रेस से आप कम्युनिकेशन नहीं करना है। आप सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो मीडिया से कम्युनिकेशन करने के पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं या यूट्यूब या फेसबुक में लाइव में या कुछ और, आई मीन कम्युनिकेशन आप पब्लिकली किया है, तो इट विल टेक एज अ वायलेशन ऑफ योर सर्विस कंडीशंस। Do not use advice on the rituals of various मसलक। आप देखिए इंडिया में बहुत, आई मीन इस्लाम में बहुत अलग अलग वैराइटीज ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उसके बारे में आप ये इधर कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन मत कीजिएगा। अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो उसको आप डोंट क्वेश्चन द अदर पर्सन्स प्रैक्टिस एंड लेट द इंडिविजुअल पिलग्रिम्स डू देयर ओन प्रैक्टिसेस। डू नॉट लीड ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स टू रेज देयर प्रॉब्लम बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये यूनियनिज्म या ग्रुपिज्म करके, ये हाजिस को लीड करके अगेंस्ट अथॉरिटीज व्हाट वी कॉल इश्यूज रेज करना सही नहीं है। इसके लिए आप देखिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट से, आपको ये पता है कि कैसे बिहेव करना है। आप यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द हाजिस, तो आप हाजिस का इश्यूज हो सकता है
और उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे पास है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को आप डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए आपका हसूदा ऐप भी है और आपका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स है, खादिम जज डेस्क या स्टेट जज इंस्पेक्टर डेस्क है, कोऑर्डिनेशन डेस्क है और सीजीए तक आपका कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन लोग से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हाजिर का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाजिर के साथ आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप एक्शन कुछ मत लीजिएगा। डू नॉट गाइड इन अनऑथराइज्ड, इलीगल और नॉन ऑफिशियल वे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाजी का कुछ इश्यूज होता है कि हाजी को सिम लेना है, हाजी का अदा ही करना है, हाजी का रियाल को कैश लेना है, इंडियन कैश को रियाल कन्वर्ट करना है या रियाल को इंडियन रुपी कन्वर्ट करना है। ये सब में आप कुछ इलीगल या नॉन ऑथराइज्ड वे कुछ रेकमेंड कर किया है तो ये तो कैसे भी कैन कम बैक टू अवर नॉलेज। हेलो, तो ये सब आप अवॉइड कीजिए। डोंट एक्ट इन एनी इलीगल वे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द स्टे इन सऊदी अरेबिया। डू नॉट गिव नेगेटिव गेस्टर्स टू द पिलग्रिमेज नीड, ये इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी बोले हैं कि आप सब्र कीजिए और कुछ भी इश्यूज है हाजी को पोलाइटली और स्माइलिंग मैनर में आप बात कीजिए और डोंट एवर गेट एंग्री विद द पिलग्रिम। सो आप थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कीजिएगा। सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या करना है उसके बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस किए हैं कि सिलेक्शन होने के बाद आप क्या करना है। अभी ट्रेनिंग सेशन आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो इसको आप नोट्स ले लीजिए, इसको फिर पढ़िए और अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और सऊदी अरेबिया में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज हज गाइड। अभी हज गाइड अभी जल्दी से प्रिंट हो जाएगा, तो आपको हज गाइड एक दिया जाएगा, उसको भी अच्छे से पढ़ के कीप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर हैंड्स। फ्लाइट अलॉटमेंट के बाद आपको ग्रुप का डिटेल्स मिल जाएगा कि किस हाजी के साथ आप जा रहे हैं और आपका 150 हाजी आपको ग्रुप का डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप ऑलरेडी हसूद ऐप में उनको एनरोल हो जाएगा, फिर उसके साथ आप उनका मोबाइल नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इनफॉर्मली बनाएगा ताकि उनको प्रॉब्लम्स को आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और ऑलरेडी हम बोले थे कि 10-15 आप वॉलंटियर्स ले लीजिए। वॉलंटियर्स में हाजी में भी कोई डॉक्टर हो सकता, पैरामेडिक्स हो सकता, यंग एंड एनर्जेटिक पीपल होंगे, लीडरशिप लीडरशिप कैपेसिटी होंगे, उन लोगों को लेके उनको वॉलंटियर ग्रुप बना के उनको थोड़ा सा टास्क दे सकते हैं। आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऑलरेडी एसएमएस या व्हाट्सएप में आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। रिपोर्टिंग टू हज हाउस, इसको तो ऑलरेडी आप बोल चुके हैं हज हाउस में क्या करना है, हज इसको क्या क्या मदद करना है और इश्यूज है तो कैसे सॉल्व करना है। एम्बार्केशन पॉइंट, एम्बार्केशन पॉइंट में हम ऑलरेडी बोला है कि रिगार्डिंग यूसेज ऑफ टॉयलेट, वजू करने का और नमाज पढ़ने का क्या क्या जगह है और उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं। उसमें आप आज इसको एक क्लास ले लीजिए, सब हाजी को इकट्ठा करके एयरपोर्ट में उनके साथ बेसिक चीज आप उनको बता दीजिए। लाइक नमाज पढ़ने के लिए कहाँ रहना है, 5-6 घंटे का सफर है उसमें कैसे बिहेव करना है और लैंडिंग होने के बाद कहाँ उनको लेके जाना है, ये सब डिटेल्स दे दीजिए। और उनके हाथ में क्या क्या रहना चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए, वीसा रहना चाहिए और हेल्थ कार्ड जरूर रहना चाहिए। अदर चीज भी रहना चाहिए, एक है ई ब्रेसलेट और स्टील ब्रेसलेट और हाजी का आईडी कार्ड। इनसाइड द एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ मोबाइल फोन्स, यूज सीट बेल्ट एंड अवॉइड डूइंग वजू। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सभी लोग दे स्टार्ट स्टैंडिंग अप एंड उधर जाके आई मीन वॉशरूम का पास में क्यों लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हाजी को भी इनकन्वीनियंस होता है, कैबिन क्रू को भी इनकन्वीनियंस होता है। तो इसलिए बोल दीजिएगा कि आप पहले ही वजू करके रख लीजिए ताकि हाजी को कन्वीनियंस ना हो जाए। और रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ना है फ्लाइट पे, ये तो आपको पता है। और लगेज का आइडेंटिफिकेशन और लगेज का पहुंचाने का भी जिम्मेदारी आपका है। तो आप हाजी का इश्यू है तो उसको इमीडिएटली उधर रहने वाला हज असिस्टेंट और एएचएस को इंटीमेट कर लीजिए। मॉलिम्स ऑफिस आप बोले हैं, मॉलिम अभी मॉलिम का नाम चेंज हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गया और उनका मकसद होते हैं, तो उनका फोन नंबर और उनके डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी आप ले लीजिए और उनके कोऑर्डिनेशन में रहिए। इसके लिए मॉलिम्स या सर्विस प्रोवाइडर का मैनेजर्स होते हैं वो मोस्टली अरबीज होते हैं, उनका कम्युनिकेशन हम इंग्लिश में बोलने से उनको समझ नहीं पाएंगे या उर्दू या हिंदी में भी समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आसान अरबी का
10-15 कॉमन सेंटेंसेस आप अभी पढ़ लीजिए। अभी मदीना में, हम मक्का के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ लिया, उसके बारे में बहुत कुछ चीज बोला है कि अलीजिया में क्या क्या अकोमोडेशन होता है और कहाँ कहाँ बसेस मिलते हैं, वो सब डिटेल्स मिल जाएगा आपका। और हरम शरीफ में कहाँ कहाँ आजिज मिस होने के चांसेस है और कहाँ वजू करना है, कहाँ वापस आना है, कहाँ बस स्टॉप है, वो सब आपको बहुत पहले क्लास में ऑलरेडी बोल चुका है। तो ये सब आप ऑलरेडी रेडी करके रख लीजिए और हाजी का खिदमत करने समय मदद कर लीजिए इसमें। और अभी मदीना मूवमेंट में क्या होता है कि इधर बिफोर आफ्टर हज के बाद आपको 3 दिन के बाद मदीना का मूवमेंट शुरू होता है। तो लगेज तो पहले जाता है, तो उसके बाद आपका हाजी जाने समय बसेस में जाएंगे। तो बसेस जाने समय आपको इंश्योर करना है कि हाजी का सभी आइटम बसेस में लोड हो गया और हाजी सब हाजिस मिसिंग नहीं है, सब हाजिस बसेस में जा रहे हैं। तो मदीना में जाने के बाद आपका फिर मदीना में रूम एलोकेशन होगा। मदीना में हाजिस का मे बी दे में नॉट बी इन द सेम रूम का हिसाब से थोड़ा सा कवर में स्प्लिटिंग हो सकता है, तो ये भी हाजी को कन्विंस करना पड़ेगा। और मदीना में आपका कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो हाजी बाहर ही खाना पड़ेगा। उसके लिए भी फैसिलिटीज आप उनको बोल दीजिएगा कि आप बाहर में करा लीजिए। और मदीना में आपका इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो रियाजुल जन्ना लेके जाने के लिए, क्योंकि सभी हाजी सोचता है कि वो रियाजुल जन्ना जाना चाहता है, तो इसके लिए पास मिलेगा। वो मदीना में मदीना डेस्क होगा, उधर आप उधर बैठेंगे, वो आपको कोऑर्डिनेशन करके आपको बताएंगे कि कितना हाजी को इस दिन लेके जाना है, किस किस हाजी को लेके जाना है, उसके हिसाब से उनको रियाजुल जन्ना लेके वापस ले जाएगा। और मदीना में भी, मदीना से आप वापस इंडिया जाने समय लगेज पहले ही पैक करके ले जाएंगे। वो भी आपको सीजन साहब ने बोला होगा 16 आवर्स टू 20 आवर्स पहले जाएगा लगेज, उसके बाद 4-5 घंटे के पहले हाजी जाएगा। तो लगेज पैकिंग करके सही तरीके से पैक किया गया, ये सब इंफॉर्मेशन कर लीजिए। इसमें भी लगेज में भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हाजी का क्या होता है, जमजम जमजम को कोडिंग करके लगेज में डालते हैं, फिर सऊदी हुकूमत ने उसको निकाल के बाहर भेज देते हैं। तो उस समय हाजी को तकलीफ होता है कि उनका जमजम नहीं मिल रहा है, उसके साथ उनका वैल्यूएबल्स भी खो गया इसे बोल रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट हाजी को बोल दीजिएगा कि आपको इंडिया जाने पे आपको जमजम मिल जाएगा, आप जमजम को मेन लगेज में मत रखिए। ऐसे भी जमजम वापस लेने जाना चाहते हैं तो उसको अलग कार्टन बॉक्सेस और कार्डबोर्ड बॉक्सेस में लेके उसको रख के उसको सील करके लगेज में भेज दीजिए। इफ इट इज कमिंग बैक टू इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मिसिंग लगेज, ये मिसिंग लगेज में आपको हाजिस को लगेज आने के बाद मिसिंग लगेज का एक ही तरीका है, वो मिसप्लेस बैगेज सेल का जाना है। इसमें हज सुविधा ऐप पर भी है प्रोविजंस की कहाँ हाजी का लगेज है, तो ये डिटेल आपको मिल जाएगा। आप कहाँ मिसिंग लगेज सेल है आपको पता चलेगा, मिसिंग बैगेज सेल, तो उधर जाके उसको कोऑर्डिनेट कर लीजिए। सभी हाजी का लगेज इस बार 100% मिल जाएगा, तो डोंट आस्क हाजी, डोंट वरी। उमरा लेके जाने के हम ऑलरेडी बोला है कि ग्रुप में लेके जाना है, उसको वॉलंटियर्स ले लीजिए, वॉलंटियर से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप भी करिए। अभी ऑथराइज वेंडर से ही सिम कार्ड लेना है और हाजी को इंश्योर कर लीजिए कि लोकल रास्ते में वाले से चीटिंग करने का बहुत चांसेस है, इसीलिए ऑथराइज्ड वेंडर्स होते हैं उधर। जैन एक कंपनी होता है, एसटीसी एक कंपनी होता है, तो ये सबसे ले सकते हैं। देखिए, और हाजी फिर उमरा करना चाहते हैं, दोबारा उमरा करना चाहते हैं, तो हाजी जा सकते हैं मस्जिद आयशा। तो ये सब भी डिटेल्स, मस्जिद आयशा कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, ये सब आप डिटेल्स हाजी को दीजिए। और इम्पोर्टेंट थिंग कि हाजी मिस हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो डिटेल्स हाजी को आप इंश्योर करना है कि ही डजंट गो मिसिंग। ऑलरेडी बिल्डिंग का प्रॉब्लम्स है, तो उसको किसको रिपोर्ट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं, तो वो इंश्योर कर लीजिए। व्हील चेयर्स, ये व्हील चेयर्स आईएचपी और मक्का में भी मिल जाता है और ब्रांचेस में भी मिलेगा। तो कुछ आदमी का असिस्टेंस चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए, तो आप इधर ब्रांचेस या आईएचपी और मक्का से कोऑर्डिनेट करके व्हील चेयर ले लीजिए। बट आई मीन ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ व्हील चेयर्स विल बी अवेलेबल, तो जल्दी जाके आप कोऑर्डिनेट करने से ज्यादा व्हील चेयर्स मिल जाएगा। लॉस्ट मनी, अभी एक केस होता है कि हाजी का पैसा खो जाता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनना है, वो जनरल वेलफेयर डेस्क।
तो जनरल वेलफेयर डेस्क में आप जाके रिपोर्ट करना है, यू टेक द हाजी, टेल द अमाउंट लॉस्ट, वी विल टेक अ रिपोर्ट, और उसके बाद हाजी को सब्सिस्टेंस के लिए 30 रियाल पर डे के हिसाब से वो देंगे कुछ अमाउंट। इसके लिए 2 दिन बाद आप उधर जनरल वेलफेयर डेस्क या एच पे मक्का जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आपको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। जमजम वाटर अभी हाजी का अजीजिया में रहने से में उनको जमजम मिल जाते हैं, तो ये जमजम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मेदारी आपके पास होता है। गैस सिलेंडर कम हो गया, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो उसके लिए हाजी से कोऑर्डिनेट करके आप सिलेंडर रिफिल करने के लिए उसको अरेंज करना है, उसमें जल्दी से कर लीजिए, अदरवाइज हाजी हाजी विल गेट इनकन्वीनियंस्ड। मेडिकल असिस्टेंस ऑलरेडी बोल चुका है आपको, हमारे पास डिस्पेंसरीज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, और सऊदी की हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं, और मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंसेस टीम्स भी हैं। तो इसका सभी डिटेल्स आपका असली ऐप में मिल जाएगा, और उसका डिटेल्स हम व्हाट्सएप में भी शेयर करेंगे। तो यही डिटेल्स के साथ आप हाजी को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाजी का मेडिकल सिचुएशन देखिए, आप हाजी को अकोमोडेट करके हॉस्पिटल तक आप जाना पड़ेगा, और कुछ हाजी बुजुर्ग हाजी है तो आपके साथ रहिए, और उनके साथ रहिए और उनका मदद कीजिएगा। हैंडलिंग डेथ केसेस, ये हैंडलिंग ऑफ डेथ केसेस ऑलरेडी आपको बोला है कि आप एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द हाजी। वो इधर है तो इधर नहीं है तो इंडिया से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी देने के बाद सर्विस प्रोवाइडर कंपनी or the Maulim will do the necessary burial formality, and after that they will give a certificate। वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे सीजीआई ने एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसको आप वापस उसका फैमिली मेंबर्स को बोल दीजिएगा, दे दीजिएगा, और उसके बाद आपका उनका हाजी का पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसको आप हाई स्कूल मक्का में डिपॉजिट कर सकते हैं, या उनका कवर का रिलेटिव्स है तो उनको भी दे सकते हैं। मदीना के जाने का वक्त कब आएगा उसको डिटेल्स आपको डेस्क या स्टेट एजेंट डेस्क से आपको बोल देंगे, तो आपका टाइमिंग और डिटेल्स ऑफ द व्हीकल्स आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से हाजी को प्रिपेयर करने के लिए बोल देंगे। तो आपका हाजी बहुत टेंशन में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा पैकिंग ओवरकम करने के लिए उनको टाइम सही से मिल जाएगा। आप लेट मोमेंट में इंफॉर्मेशन दिया तो वो लोग हाजी विल गेट परेशान हो जाएंगे। 5 दिन का हज का 5 दिन का इंपॉर्टेंट चीज आपका बहुत कुछ ऑलरेडी सीजी भी बोला है, और जैनब भी बोला होगा कि हाजी का क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। उसमें या वाटर कूलर एयर कूलर का इश्यूज हो सकते हैं, स्पेस का इश्यूज हो सकते हैं, और गुम होने का भी इशू हो सकते हैं वापस आने समय। तो ये सब ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो आपको पता होगा। बस आप क्या करना है कि सभी एवरी हाजी आपका एक एक जगह से नेक्स्ट जगह जा रहा है, दैट इज मीना से अराफात जा रहा है, अराफात से मुजदलिफा जा रहा है, मुजदलिफा से वापस मीना आ रहा है। तो ये ईच इस मोमेंट में आपका 150 हाजी सब लोग आ गया कि नहीं, ये इंश्योर करना पड़ेगा। आप कोई भी हाजी मिसिंग मत कीजिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जिम्मेदारी फुल्ली स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर को ही दिया गया है। तो आप मूवमेंट के बाद इमीडिएटली इन्फॉर्म कर लीजिए आपका HA या AHO के लिए कि आपका 150 हाजी मूव हो गया। तो गाड़ी का इशू हो सकता है, और मेट्रो पे कोई इशू नहीं होता है, मेट्रो पे सब लोग इकट्ठा जाके मेट्रो में जाते हैं। तो उसमें आप एक चीज देख लीजिए कि हाजी ग्रुप में मूव होते हैं, अकेले नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ऑलरेडी बोल चुका है बहुत लोग। तो इंश्योर दैट एवरीबॉडी गोस इन अ ग्रुप। तो इसके लिए आप वॉलंटियर्स को असिस्टेंस ले लीजिए, और इसमें टाइम पे खाना नहीं मिला, ये सब इश्यूज है, तो उसको आप कैंप का 2 लोग हम डिप्यूट करते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, और उधर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का सऊदी मैनेजर्स भी होते हैं। तो इन तीनों से आप कोऑर्डिनेट करके आपका हाजिज का कुछ इशू है कैंप में, बिना कैंप में, तो वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आप अरफात में इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अरफात में मस्जिद निमरा जाता है हाजिज, फिर अरफात माउंटेन जाना है वैसे सोचते जाते हैं, तो इसमें बहुत लंबा सफर होके उनको थक जाते हैं, फिर गुम भी हो जाते हैं। तो इसको आप ऑलरेडी सेंसिटाइज कर दीजिए कि हज के जाने के पहले 5 दिन के हज के पहले ही बोल दीजिए ये सब मत कीजिएगा, आप अरफात में रहने से ही आपका सब कुछ हज का फर्ज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये सब
एक्सट्रीम मेजर्स मत कीजिएगा। और अरफात में भी एक और चीज करते हैं हाजी, जोहर के बाद बाहर धूप में रह के दुआ मांगते हैं, तो उसमें भी बहुत सनस्ट्रोक एंड हीट एक्सट्रॉशन। तो इसके लिए आप सेंसिटाइज कीजिए हाजी की, आप शेड पे रह के आप दुआ मांग सकते हैं, उसमें इश्यू नहीं है। अरफात का उसमें आपका रिचुअल्स का कुछ मसला नहीं होता है। तो कोई हाजी बुजुर्ग हाजी होते हैं, उनका इश्यूज आप देखेंगे, मेडिकल इश्यूज, तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर लीजिए उसको, इधर एम्बुलेंसेस या डिस्पेंसरी में आप पहुंचा सकते हैं। ये इसमें आफत और मीना में आपको एक और जिम्मेदारी देते हैं कि आप थोड़ा सा ORS, that is rehydration salts, oral rehydration salts। तो इधर ग्लूकोज या ORS, ये दोनों आप लेके रख लीजिए आपके पास। हम हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आपको पहुंचा देंगे, तो आपके पास थोड़ा सा ये मटेरियल ज्यादा रख लीजिए और वाटर बॉटल्स एक्स्ट्रा लेके जाइए, ताकि आप भी फिट हो जाएंगे हाजी को हेल्प करने के लिए। और सेकंड चीज है कि आज इसको कुछ कोई हाजी वाटर नहीं लेके आए, उनको इमरजेंसी हाइड्रेशन चाहिए, तो आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। और एक और चीज है कि बुजुर्ग हाजी होते हैं, उनको स्पेशली पैदल नहीं जा पाएंगे, उनको मूवमेंट इश्यूज होते हैं हाजीज को, उनको रमी के लिए आप वकालत दे सकते हैं किसी और को। तो वो बोल दीजिए किसी को वकालत देते हैं, कोई तंदुरुस्त हाजी है उनको देते हैं, तो वो रमी करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। वो they did not walk a lot to Navarat as well as Mina। रिटर्न फ्लाइट में ऑलरेडी आपको बोला है कि जमजम अलग से पैक करके हाजी को लेके जाने के लिए। तो इसमें इफटार जमजम को वो लोग, जमजम और जैतून, ये दोनों में इश्यूज आते हैं हाजियों को। और बैटरी बैंक इज नॉट अलाउड इनसाइड द चेक इन लगेज। ये तीनों आप चेक कर लीजिए और हाजी को कंटिन्यूसली सेंसिटाइज करते रहिए। तो आपका जिम्मेदारी बस वापस इंडिया आने तक नहीं, इंडिया में उनको फैमिली को छोड़ने तक आपको जिम्मेदारी होता है। तो इंश्योर दैट लगेज उनका वापस आने समय लगेज का भी मदद कीजिएगा। और आपका 150 जी एयरपोर्ट छोड़ के बाहर जाने तक आप इंश्योर कर लीजिए कि उनका कुछ भी इश्यूज है आपसे सॉल्व करना पड़ेगा। So I think this covers all the aspects of the responsibilities of the state inspector। इसमें मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सब सिक्योरिटी, डेडिकेशन एंड सर्विस मेंटालिटी, ये तीनों आप हाजी के तरफ इंश्योर कर लीजिए। कभी भी टेंशन मत हो जाइएगा, एंग्री मत हो जाइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दैट हाजीज गेट द बेस्ट service for their pilgrimage। Thank you very much। Now, if anybody has any questions, they can ask me।